Okay, so moving on with the second part, the topic is change of states of matter. So we know that matter, which is in our surroundings, they exist in different states. So there are basically three states of matter: three: solid, liquid, or gas. Depending upon the conditions of temperature and pressure, a matter may exist in any of these three states. Matter not only exists in these three states but also interchange its state depending upon the physical conditions of temperature and pressure around it. So if you heat solid, it changes into liquid. If you heat it further, if you heat the liquid further, then it changes into gas. If you cool a gas, it condenses into liquid. If you cool the liquid further, it solidifies into solid. The most familiar example of this is water, which can exist in all the three states. Water is basically liquid at room temperature. Normal conditions of temperature and pressure, water exists as liquid. But if you heat water, it becomes steam. If you cool water, it becomes ice. Steam is a gas, ice is a solid. If you heat ice, again it becomes water. If you cool steam, again it becomes water. So ice can convert into water, can convert into steam, can convert into water, can convert into ice. So we can see that the three states of matter show interchangeability. That means the states of matter can interchange from one form to another, from one state to another, by applying or by removing, by adding or by removing energy. That energy is basically in the form of heat. So what happens during the change of state inside the matter? So we have studied about the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter. You know what is kinetic theory of matter? You already know this. Number one, matter is made up of tiny particles, right? That's the first point of kinetic theory of matter. Then these tiny particles have spaces between them, and what do we call these spaces as? Intermolecular spaces. These tiny particles attract each other with a force. What is this force known as? Intermolecular force of attraction. And these tiny particles move according to the state in which they are. If they are in solid state, they will vibrate about their mean position. If they are in gaseous state, then they can move randomly. So that is known as intermolecular movement, motion of tiny particles. So these four characteristics, or these four points, are known as kinetic theory of matter. So on the basis of kinetic theory of matter, we can understand the change of state, the phenomena of change of state in a better way, right? So how can we understand change of state on the basis of these 4 points? Okay, so we have to study a few experiments for this. First, we will study the effect of change of temperature on matter or state of matter. Okay, so to understand the change of state, we have to take a piece of about 100 to 150 grams of ice in a beaker. Okay, we have to take 100 or 150 grams of ice in a beaker. And after taking this,
we have to hang a laboratory thermometer into it so that its bulb is in contact with the ice. Do you know what is a laboratory thermometer? A laboratory thermometer is a special kind of thermometer. You know what is a thermometer, right? Thermometer is a device which measures heat. I'm wrong. Thermometer does not measure heat. Thermometer measures the temperature. What is temperature? Temperature is degree of hotness or coldness. Remember this. Thermometer measures temperature, not heat. Temperature. And what is temperature? Temperature is degree of hotness or coldness of a substance. Temperature is a degree of hotness or coldness of a substance. So temperature tells us how hot or cold an object is, a substance is. And how can we know the temperature? By using thermometer. So we have a special thermometer here, laboratory thermometer. What is laboratory thermometer? It has markings from 0 degree, sometimes minus 10 degree to 110 degree, or 0 degree to 100 degree, depends. This is a expensive laboratory thermometer which has markings beyond 0 degree and above 100 degree. But if you ask for a normal laboratory thermometer, it will have calibration from 0 to 100 degree. Right? So that's a laboratory thermometer, and it has a bulb. So what is a bulb? So if you see a thermometer, yeah, that's a thermometer, and here you see the bulb of the thermometer. This bulb has got mercury in it. Mercury. Why mercury? Because mercury is a metal, very good conductor of heat. So instantly on dipping it in any substance, it acquires the temperature of that substance. So if the temperature is high, then mercury starts expanding. If the temperature is low, then mercury starts contracting. And there is a thin capillary. Capillary means a tube inside this thermometer. So in that tube, this mercury will rise or fall, expand. If it expands, then it will rise. If it contracts, then the level of mercury will fall. And whichever level it reaches, that shows the thermometer by the numbers printed on the thermometer, calibrated on the thermometer. So that's how the thermometer works. You must be knowing how thermometer works. Nowadays, they don't use this thermometer. They use it only in specific conditions. Some people, they use it as at home also. That's known as clinical thermometer, to measure the body temperature. Clinical thermometer. So clinical thermometer has markings in Fahrenheit, degree Fahrenheit, not degree Celsius, but degree Fahrenheit. No, not degree Fahrenheit, just Fahrenheit, I think. Yeah. So Fahrenheit is another unit in which temperature is measured. Generally, we measure temperature, the atmospheric temperature or normal temperature in laboratory is also measured in degree Celsius. And another unit is Fahrenheit. So body temperature is generally measured in Fahrenheit. You must have heard that the temperature of body when there is some fever, it is around 101. So that is 101 Fahrenheit, not degree Celsius. If you convert this in degree Celsius, there is a specific method of converting, which is not our topic for today. You will understand that our normal body temperature is 38.5 degrees Celsius, which is around 98.5 Fahrenheit, approximately. I'm not telling you exact figures, right? So this is 98.5 Fahrenheit is a normal body temperature, which converts into 38.5 डिग्री सेल्सियस. तुम्हारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं जनरली, और वो उसको जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलता है. ठीक है, तो डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. घर पे भी तुम्हारा बुखार मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर है. लेबोरेटरी में लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है. ओके,
तो अब करना क्या है? सो वी हैव टेकन अ पीसेस ऑफ आइस इन अ बीकर, फिर उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैंग कर दिया, तो बल्ब आइस के साथ कांटेक्ट में है, तो धीरे धीरे थर्मोमीटर में कौन सा टेम्परेचर दिखेगा? आइस का। ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 से कम होता है, याद रखना। देन वी स्टार्ट हीटिंग द बीकर स्लोली ऑन अ फ्लेम, लो फ्लेम। ठीक है, नोट डाउन द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स चेंजिंग टू वाटर। अब जब जैसे ही तुम नोट डाउन करोगे, आइस जैसे ही वाटर में कन्वर्ट होगा और तुम टेम्परेचर उसको नोट डाउन करोगे, यू विल नोट दैट इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। सी हो सकता है इनिशियली आइस, मैं तुम्हें फिगर दिखाता हूँ। हाँ, ये फिगर है। इनिशियली जब आइस को हमने मेल्ट करना शुरू किया और थर्मोमीटर उसमें डाला, तो इनिशियली आइस का टेम्परेचर 0 से कम होगा। ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा आइस का, मतलब माइनस में होगा, सपोज -5 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे उसको हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, -5, -4, -3, -2, -1, और ये क्या बन जाएगा फाइनली? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर तो तुमने उसने क्या बोला है पता है? नोट डाउन द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर, मतलब आइस कब मेल्ट होता है वो टेम्परेचर नोट करो। तो हमें पता है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट होता है, राइट? नोट द टेम्परेचर व्हेन होल ऑफ द आइस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर। जब पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, वो भी टेम्परेचर नोट करो। अच्छा, तो जब आइस मेल्ट करना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। और सरप्राइजिंगली जब लास्ट पीस, लास्ट क्रिस्टल ऑफ आइस भी मेल्ट हो गया, लास्ट जस्ट मेल्ट हुआ, तभी भी अगर टेम्परेचर देखोगे तो कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर। अब तुम्हें रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर, सॉरी, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है? कि जब सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ। तो मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन यहां पे बताता हूं कि तुमने जब मेल्टिंग शुरू किया, ठीक है, तो टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री था, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट होने लगा तो टेम्परेचर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये आइस पूरा का पूरा कन्वर्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, लास्ट पीस ऑफ आइस भी मेल्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना नोट किया तुमने? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस के स्टार्टिंग के पीस के मेल्टिंग से शुरू होके लास्ट पीस मेल्ट होने तक टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। सपोज ये पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए लगा 10 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। सपोज 10 मिनट्स तक हमने हीट किया उसको और टेम्परेचर 0 डिग्री से 0 डिग्री ही रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक फिजिकल चेंज हमने देखा। क्या फिजिकल चेंज? द स्टेट ऑफ आइस चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, आइस गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो पहले क्या था? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में। और ये क्या था? मेल्टिंग। दिस इज मेल्टिंग, दिस इज मेल्टिंग। अब मेल्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या हो गया? मेल्टिंग का डेफिनेशन है कि इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ process in which a solid changes or converts into a liquid at constant temperature. It is a process in which a solid changes into liquid at a constant temperature। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड चेंज होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? मेल्टिंग हमने समझा पूरा, मेल्टिंग में क्या होता है ये हमने समझा पूरा। क्या होता है मेल्टिंग में? मेल्टिंग में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में,
by giving heat, by absorbing heat, ये तो लिखा ही नहीं हमने. It is a process in which solid changes into liquid by absorption of heat. It is a process in which a solid changes into liquid by absorption of heat at a constant temperature. तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड पे चेंज होता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, उसी को मेल्टिंग बोलते हैं. मेल्टिंग की डेफिनेशन रेडी हो गई, राइट? अब आगे देखते हैं क्या बोला है उसने. नाउ प्लेस अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड स्लोली हीट द बीकर विद कांस्टेंट स्टरिंग. अब क्या करना है पता है? अब इस बीकर को कॉन्स्टेंटली एक ग्लास स्टरर से मिक्स करते रहना है और इसको फर्दर हीट करना है. मतलब पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट होने के बाद हीटिंग स्टॉप नहीं करना है, हीटिंग कंटिन्यू रखना है. तो अब मेरे पास क्या था? 0 डिग्री पे मेरे पास वाटर था. 0 डिग्री पे क्या था? वाटर था. अब ये वाटर को हीट करूंगा, क्या होगा? धीरे धीरे वाटर बॉईल होने लगेगा. कब तक बॉईल होगा? अब धीरे धीरे जो तुम्हारा थर्मोमीटर है उस पे 0 डिग्री से ये मर्क्यूरी राइज होगा. क्यों? क्योंकि मैं हीट कर रहा हूं ना, तो वाटर गर्म हो रहा है. वाटर गर्म हो रहा है तो मर्क्यूरी हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर से और वो राइज होगा. वो कब तक राइज होगा? जब तक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंच जाता. सो द वाटर विल the temperature of water will change from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Water will remain water, but it will absorb heat and its temperature will rise. ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है. नोट द टेम्परेचर व्हेन वाटर स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर. तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा. और जब वो वाटर वेपर बनाने लगेगा, बॉईल होने लगेगा, तुम्हें दिखेगा बॉईल होता है तो कैसा होता है? बबल्स निकलते हैं, वाटर के पास एनर्जी आ जाती है. तो उसका टेम्परेचर नोट करो कितना हो जाएगा तब वो 100 डिग्री सेल्सियस. Keep a close look at the thermometer and note the temperature when most of the water has vaporized. अब तुम्हें थर्मोमीटर को नोट करते रहना है कि ये बॉइलिंग के टाइम पे हो क्या रहा है थर्मोमीटर के साथ. तो तुम नोट करोगे कि जब तक पूरा वाटर बॉईल नहीं हो जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता. तो अब क्या हो रहा है? अब वाटर बॉईल हो रहा है एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम. द वाटर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर लिक्विड इनटू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग और वेपराइजेशन. तो हमारे पास और एक डेफिनेशन क्रिएट हो चुकी है वेपराइजेशन की. वेपराइजेशन, सॉरी, वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग. क्या होता है वेपराइजेशन या बॉइलिंग? इट इज अ प्रोसेस. इट इज, मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, ठीक है? देखो कैसे टेक्निकल टर्म्स के साथ डेफिनेशन लिखते हैं, एक भी चीज मिस नहीं करनी है. देखो कैसे बनाते हैं. इट इज अ प्रोसेस इन विच a liquid changes into a gas. A liquid changes into a gas at a constant temperature. By absorption of heat. एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. देखा हमने यहाँ पे पहले टेम्परेचर कितना था जब वाटर बॉईल होना शुरू किया? 100 डिग्री सेल्सियस. और जब बहुत सारा वाटर बॉईल हो गया तभी भी टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. जब बहुत सारी स्टीम बन गई तभी भी टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस. सो इट इज अ प्रोसेस इन विच a liquid changes into a gas at a constant temperature by absorption of heat. एक मिनट, यहां पे, हाँ यहां पे भी सही है. इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस into a liquid by absorption of heat at a constant. बिल्कुल सही, दोनों डेफिनेशन हमारी परफेक्ट थी,
ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्शन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट। बिल्कुल हमने समझ लिया ये क्या हो रहा है। वी ऑब्जर्व दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस आइस स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर। दिस चेंज इज कॉल्ड मेल्टिंग। बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर रिमेन्स सेम टिल ऑल द आइस चेंजेस इनटू वाटर। समझ में आया तुमको? पूरा का पूरा आइस जब तक वाटर नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। द थर्मोमीटर shows 0 degree Celsius until all the ice has melted. On further heating, the temperature starts rising. पूरा आइस मेल्ट होने के बाद भी अगर हीटिंग कंटिन्यू का किया तो टेम्परेचर राइज होगा एट 373 केल्विन। तुम सोचोगे ये कहां से आया? और 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन के बारे में अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। केल्विन एक एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट पढ़ा है ना हमने फिजिक्स में, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है केल्विन। इसका और क्या रिलेशन है डिग्री सेल्सियस का मैं तुम्हें बताऊंगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होना शुरू करता है। एज द वाटर कंटिन्यूज टू बॉईल द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, डज नॉट राइज टिल ऑल द वाटर हैज बॉइल्ड इनटू स्टीम। ये हमारी एक्टिविटी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी और हमारे ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर से हमने दो डेफिनेशन क्रिएट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। ठीक है, तो क्या होता क्या है? काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर से समझेंगे कि मेल्टिंग में होता क्या है। देखो, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, पार्टिकल्स एनर्जेटिक बन जाते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है। अब तुम पूछोगे सर काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी एक स्पेशल टाइप की एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास। जब पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तब ये एनर्जी बिल्ड होती है। So the energy of moving particles is known as kinetic energy, which goes on increasing because of supply of heat. अच्छा, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो आइस के पार्टिकल अब और ज्यादा विगरसली वाइब्रेट करने लगेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, और इतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे कि उनको जो हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो उनको हेल्प करेगी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर दें। So they break away the intermolecular force of attraction between them, and as a result particles leave their fixed position. Particles become free and they start moving freely. Finally a stage is reached when solid melts and gets converted into liquid. ये पूरी melting की जो process है उसको हमने kinetic theory of matter के हिसाब से पढ़ा। kinetic theory मैंने यहाँ पे बताई थी तुम्हें कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, और पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं और वो इंटरमोलिकुलर मूवमेंट भी करते हैं पार्टिकल्स। अब यही सारी चीजें हमने मेल्टिंग में अप्लाई की। कैसे अप्लाई की और एक बार बता रहा हूं, इसको लर्न कर लेना, ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। सो सॉलिड्स में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं the particles become more energetic, they absorb energy, their kinetic energy increases. Due to increase in kinetic energy, particle starts vibrating more vigorously about their mean position, and hence the particles are they overcome the force, intermolecular force of attraction between each other, and they become free, leave their fixed position and start moving freely, and finally solid melts and gets converted into liquid. This is how melting happens at molecular level. ये हमें दिखता नहीं है लेकिन ये हम exactly बता सकते हैं because we know how particles behave. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है जो और एब्सोल्युटली परफेक्ट है, लॉजिकल है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें? अच्छा, तो टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। आई होप तुम लोग नोट्स ले रहे हो ये सारी चीजों की। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। याद रखो इसमें क्या क्या की वर्ड्स यूज किए हैं। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होता है, टू बिकम अ लिक्विड जिसमें वो लिक्विड बन जाता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड बन जाता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। Therefore, melting point of liquid is an indication of strength of the intermolecular force of attraction. Melting point of ice is 0 degrees Celsius. It may be also expressed as 273.16 Kelvin or simply 273 Kelvin. The process of melting is also called fusion. Melting का दूसरा नाम है fusion. और एक चीज वो लोग ने इंपॉर्टेंट बताई है, एक यूनिट की। कौन से यूनिट की? टेम्परेचर के यूनिट की। हमने कौन से यूनिट पढ़ा है अभी तक? हम किससे फेमिलियर है? डिग्री सेल्सियस से। और एक कौन सा यूनिट बताया उन्होंने? केल्विन। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नोट कर लो कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है तो कैन यू टेल मी 100 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा? 373 केल्विन। 373 केल्विन। तो रिमेंबर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट of water. Remember this or note this and forever keep it in your brain. अच्छा, मैं और एक इंफॉर्मेशन यहां पे दे देता हूं। इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन याद रखना, तो क्या करोगे? ऐड 273, जैसे हमने यहां किया। मुझे 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाना था, सिंपली 100 में 273 ऐड कर दिया, केल्विन में बन गया। अगर मुझे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 273। ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखना, ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर, राइज या चेंज भी बोल सकते हैं, राइज से ज्यादा टेक्निकली साउंड वर्ड होगा चेंज। ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू ईच डिग्री, यार इसको प्रॉपर लिखने दो मेरे को। देखो प्रॉपर क्या होगा पता है? ईच नहीं, 1 डिग्री। ठीक है, वन वर्ड प्रॉपर है। 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। मतलब जितना डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है सेल्सियस में, उतना ही डिग्री केल्विन में भी होता है। क्योंकि एक चीज नोट करो, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस अगर थर्मोमीटर में है तो उसके कितने डिविजन्स होते हैं उनके बीच में पता है? 100 डिविजन्स। 100 मार्क होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और अगर मेरे पास 273 केल्विन है अप टू 373 केल्विन, इनके बीच में भी कितने डिविजन्स होते हैं? 100 divisions. So each degree change in temperature in degree Celsius scale is equal to each same degree of temperature change in degree Kelvin scale. ठीक है, तो ये केल्विन और सेल्सियस का पूरा मैंने तुम्हें रिलेशनशिप बताया। प्लस हमने मेल्टिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा, मेल्टिंग का दूसरा नाम भी पढ़ा हमने, क्या है? फ्यूजन। ये सब याद रखना। अरे बाप रे, देखो यही आ गया, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो 3 स्केल बताए जैसे मैंने भी तुम्हें बताया है, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, केल्विन स्केल में हम लोग डिग्री की साइन नहीं लिखते, विदाउट डिग्री साइन लिखते हैं हम लोग केल्विन में, जैसे करके ऐसे 0 केल्विन, 273 केल्विन, 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन, जो हमने पहले ही पढ़ा। ये देखो कन्वर्जन ऑफ स्केल दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये देखो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, क्या किया, 273 ऐड कर दिया, और डिग्री सेल्सियस से अच्छा फिर से कन्वर्ट किया ये बॉइलिंग पॉइंट को 273 ऐड करके। अच्छा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 माइनस कर दो, सो केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273। टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो मेरा वाला ज्यादा इजी लगा मुझे, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में करना है ऐड 273, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस करना है सब्ट्रैक्ट 273, दोनों सेम चीज है। अच्छा फ़ारेनहाइट स्केल भी है, इसको भी नोट कर लेना। वैसे फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में तुम्हें कुछ इतना पूछेंगे नहीं, बट फिर भी जनरल नॉलेज के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल इज 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये देखो फ़ारेनहाइट स्केल में देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों को कंपेयर किया है, फ़ारेनहाइट को, सेल्सियस को और केल्विन को, और ये कौन सा पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कंपैरिजन किया। यहाँ पे बोला है देखो, नोट यू मे बी नोइंग दैट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, हाँ बताया था यार, मैंने यहाँ पे बताया नहीं, 98.5 बताया था मैंने, यस सी दिस, और उन्होंने क्या बताया, 98.6, यस, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। इट्स वैल्यू इन सेल्सियस इज 37 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 38.5, सो 37 है, आई एम सॉरी आई वाज रॉन्ग, ये है 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर तुम्हें अभी बुखार नहीं है, बॉडी टेम्परेचर मेजर करो, 37 डिग्री आएगा, या 98.5 आएगा, 98.6 आएगा, आई एम सॉरी। एंड केल्विन स्केल में हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा 310 केल्विन। चलो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में करने के लिए क्या करना है, तुम लोग करोगे अभी, ये 273 माइनस करना है, सो 300 माइनस 273, प्लीज डू इट, प्लीज ट्राई नाउ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, 300 माइनस 273 कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। 353 माइनस 273 कितना होगा, वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करो। सो 353 माइनस 273, तो ये होगा 80 डिग्री सेल्सियस। 800 केल्विन माइनस 273, सो 800 माइनस 300 इज 500, 527 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 527 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है। द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल। तो तुम्हें 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, और मैंने तुम्हें बताया जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, 273 ऐड करना है, तो 25 प्लस 273, सो 298 केल्विन, 298 केल्विन। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। Liquid oxygen is used in rocket engines. Boils at 92 Kelvin under normal atmospheric pressure. Express this temperature on degree Celsius scale. 92 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, तो केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 273, तो 92 माइनस 273, तो चलो 273 में से पहले 92 माइनस करते हैं, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, और यहाँ पे मिलेगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 1, 17 माइनस 9 इज 8, और यहाँ पे आएगा 1, सो माइनस 181 डिग्री सेल्सियस।
तो रॉकेट इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन -181 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है। चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर is generally expressed in Fahrenheit. Express its value in degree Celsius and Kelvin. तो देखो डिग्री सेल्सियस में तो हमें पता है कितना है, 30 कितना था, 38 नहीं 37 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखना, ठीक है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 37 प्लस 273, ठीक है। 7 प्लस 3 0 1 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11 एंड 1 310 केल्विन। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन है। पहले देखो ये लोग ने पूरा कन्वर्जन करके 37 लाया है, फिर 310। प्लीज नोट करो इसको, पॉज करके चाहिए तो देखो कैसे कन्वर्ट किया। देखो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं चैप्टर के। बहुत ही अच्छे से इसको, ये पार्ट को समझना, क्योंकि बहुत बच्चे ना ये समझ लेते हैं लेकिन आंसर लिखना नहीं आता उनको, बिकॉज टेक्निकल वर्ड्स की कमी है। उनके बेसिक जो होता है ना, बेसिक एजुकेशन जो होता है उन पे काम नहीं हो। बेसिक एजुकेशन पे काम नहीं होना मतलब, देखो मेरे को गलत मत लेना, लेकिन बहुत सारे लोग ना स्कूल जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। उनको ये भी नहीं पता आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर फॉर्म कैसे करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन तो मैं एक क्लास में नहीं सिखा सकता तुमको। तुम सोचोगे अरे मैंने बैनियन ट्री में एडमिशन ले लिया, मुझे अभी तक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, अरे तो जय सर की गलती है, जय सर अच्छे टीचर नहीं। तो ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन है, मैं अच्छा टीचर नहीं भी हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट मी, तुम्हें अपनी अपब्रिंगिंग पे प्लस स्कूल के टीचर्स पे और पेरेंट्स पे, ये सब पे तुम्हें क्वेश्चन उठाने चाहिए। सिर्फ मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लॉजिकल है भाई, तुम मेरे को अभी तक 2 महीने से जान रहे हो, ठीक है। अब तुम घटिया सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे तो इसमें फॉल्ट किसका है? फॉल्ट मैं मानता हूं कि पूरी सिस्टम का है, क्योंकि हम स्कूल फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं। फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूं, बिकॉज अब जो टॉपिक आने वाला है ना, उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब अपनी बात रखना, अपनी बात समझाना, हाउ टू प्रूव योर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है। तो तुम कोई भी चीज को जब समझते हो ना, ट्राई टू एक्सप्रेस इट मोर एंड मोर इन अ मोर यू कैन से साइंटिफिक वे, साइंटिफिक फॉर्म। If you express a thing in a scientific form, then what happens is you get that confidence of having that topic understood in a better way. If you explain something in a better way, that means you have understood it in a better way. तो ये एक्सप्रेस कैसे करें हम, इसके लिए ना तुम्हें वो जो बाई स्टैंडर वाला जो एटीट्यूड है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। बाई स्टैंडर मतलब स्कूल जाके बैठ जाओ और टीचर जो बड़बड़ कर रहा है सुन लो और घर पे आ जाओ, ये बाई स्टैंडर एटीट्यूड है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है। बट रादर देन ट्राई टू गेट इन टू द टॉपिक, फॉर्मेलिटी मत करो। अभी भी मैं जो सिखा रहा हूं ना, टॉपिक के अंदर घुसने की कोशिश करो, सवाल पूछो अपने आप से, अच्छा ये ऐसा है, ओके, खुद को समझाने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है ये यूट्यूब वीडियो बनाते टाइम मैं किसको समझा रहा हूं? मैं खुद को समझा रहा हूं। अगर मुझे मेरी चीज खुद से अच्छे से समझ में आती है तो ही तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं कुछ भी अंट शंट बोल दूं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हें समझ में आ रहा है? एंड दैट्स व्हाट मोस्ट टीचर्स मार खाते हैं, इसलिए हमारी सिस्टम फेल होती है। इसलिए बच्चे सोचते हैं कि अरे अच्छा ऐसे ही पढ़ाई होती होगी। ऐसा नहीं होती है पढ़ाई। दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी, दिस इज नॉट व्हाट एकेडमिक इज। मोस्ट ऑफ द टीचर्स दे आर डूइंग फॉर्मेलिटी, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर डूइंग फॉर्मेलिटी। क्यों तुम्हारे स्कूल का सिलेबस इतना फटाफट फटाफट खत्म होता है? क्योंकि वो लोग फॉर्मेलिटी में सिखाते हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा वो क्या बड़बड़ कर रहा है। यहां पे मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं। क्यों कन्वर्सेशन कर रहा हूं? क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में जो डायलॉग्स हो रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इट हैज गॉट सम सब्सटेंस, सम मीनिंग टू इट। ये ऐसे ही कोई फालतू की बकवास नहीं, ठीक है। सो वॉट एवर आई एम सेइंग, तुम्हें उसको
खुद से एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा, तभी तुम्हारे आंसर की क्वालिटी सुधरेगी। और इसके लिए मैं तुम्हें सिंपल सोल्यूशन देता हूं, स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स rather than watching more movies or more social media. Start reading more. जितना तुम रीड करोगे तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, तुम्हारी चीजों की समझने की जो पावर है वो इंप्रूव होगी, और तब वही पावर तुम यहां पे यूटिलाइज कर सकते हो मेरी चीज समझने में। बात कोई भी बोली जाए तुम्हें, आज चाहे तुम्हें हिस्ट्री की बात बोली जाए या केमिस्ट्री की बात बोली जाए या मैथ्स की बात बोली जाए, बात तो बात है, इंफॉर्मेशन है, उसको समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है। तो वो आएगा तुम्हारे में जब तुम चीजें, लिखी हुई चीजें, बताई हुई चीजें, इंफॉर्मेशन को समझोगे। न्यूज़पेपर पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहे हैं न्यूज में। बुक्स पढ़ो, समझने की कोशिश करो ना, क्या क्या यहां पे हो रहा है, समझने की कोशिश करो। जब तुम्हारी समझने की जो पावर है वो बढ़ेगी, तब तुम मेरे आंसर भी अच्छे से लिखोगे, कोई भी सब्जेक्ट के आंसर अच्छे से लिखोगे, और तुम्हारे मार्क्स तुम्हें मिलने शुरू होंगे। तब जब कोई टीचर तुम्हें उल्लू बनाएगा बकवास टीचिंग करके, तब तुम उसको पकड़ लोगे कि सर ये तो सही नहीं है, आपने शॉर्टकट लगा लिया क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। तब तुम सवाल उठा पाओगे कि नहीं, मुझे फिर से आप समझाओ, मुझे नहीं समझ में आया। तब कोई भी टीचर, मैं तो तुम्हें खुला चैलेंज देता हूं, मेरा वीडियो देख के बता दो कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना समझ में आए, क्योंकि मैं हर चीज में डिटेल ढूंढता हूं और डिटेल बताने की कोशिश करता हूं। हर एक अपने पर्सपेक्टिव रखता हूं, अलग अलग पर्सपेक्टिव तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। तो दैट्स हाउ एकेडमिक्स गो। चलो, मेरा बोरिंग लेक्चर अब खत्म हो चुका है और हम अब आगे बढ़ने के लिए रेडी। सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी विच वी डिड अर्लियर ओवर हियर। ये जो एक्टिविटी, अरे भाई एक्टिविटी पे आ जाओ। हाँ, ये वाली जो एक्टिविटी थी, जिसमें ये वाली एक्टिविटी जिसमें हमने आइस को हीट किया, फिर वाटर बन गया 0 डिग्री पे, और फिर 0 डिग्री वाटर को हीट किया, फिर वो 100 डिग्री पे वाटर बन गया, बॉइलिंग वाटर, फिर वो 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर को कंटिन्यू किया तो वो 100 डिग्री पे स्टीम बन गया। इससे हमें क्या समझ में आता है, इसको हमें थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। The temperature of the system does not change after melting point is achieved till all the ice melts. Remember, जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, टेम्परेचर डज नॉट चेंज till after melting point, at melting point, till all the ice melts. Though we continue to heat the beaker, बीकर को हम हीट कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इवन दो वी आर continuing heating, even though we are supplying heat? Where does the heat go? सबसे सॉलिड क्वेश्चन, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये हीट जाती कहां है, ये टेम्परेचर पे दिखती क्यों नहीं है? तो उसका आंसर ले लो, take this answer in your face, that the heat supplied is used up in changing the state by breaking the intermolecular force of attraction which holds them in the solid state. कुछ समझ में आया? नहीं, समझो, मैं फिर से बताता हूं। जो हीट हमने सप्लाई की 0 डिग्री सेल्सियस आइस को कन्वर्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, मतलब जो हीट हमने 0 डिग्री सेल्सियस आइस को सप्लाई किया टू कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, वो सारी की सारी हीट थर्मोमीटर पे नहीं दिखी। थर्मोमीटर पे तो 0 डिग्री दिखा रहा था, लेकिन वो गई कहां? इट वॉज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस, एंड टू कन्वर्ट देम फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। वो पूरी की पूरी जो हीट है वो यूटिलाइज हो गई इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। इसके लिए वो टेम्परेचर चेंज थर्मोमीटर पे नहीं दिखता, क्योंकि वो हीट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब आइस मेल्ट होता है।
और ऐसी हीट जो टेम्परेचर चेंज नहीं करती, जो थर्मोमीटर पे नहीं दिखती, वैसी हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट, याद रखना नाम। ये लेटेंट वर्ड का मतलब क्या है? लेटेंट, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। लेटेंट मतलब हिडन हीट। तो ये हिडन है हीट, क्योंकि ये एनर्जी हिडन है, ये थर्मोमीटर पे नहीं दिखती। ये कहां पे जाती है? ये सीधा मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टारगेट करती है, उसको ब्रेक करती है और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है। तो हमारे पास एक अभी बहुत जबरदस्त डेफिनेशन आ चुकी है, याद रखो ये डेफिनेशन को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड into a liquid, into 1 kg of liquid at atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point. तो जितनी एनर्जी 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस को लगती है to change it itself into 1 kg of solid into 1 kg of ice, I'm sorry, liquid at atmospheric temperature without any change in temperature, atmospheric pressure without any change in temperature at its melting point, वही उसकी latent heat of fusion होती है. Again, let me tell you what is latent heat of fusion. The amount of energy required by 1 kg of a solid to change itself into 1 kg of liquid at atmospheric pressure without any change in temperature is the latent heat of fusion of that particular solid. ठीक है? तो हर एक सॉलिड को अलग अलग हीट लगती है, हर एक सॉलिड के 1 kg अमाउंट को अलग अलग हीट लगती है टू चेंज इटसेल्फ इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट. चलो आइस की बात करते हैं. आइस की यहाँ पे बताई नहीं है बात, अभी आगे शायद बताएंगे हम लोगों को. तब तक हम लोग लिक्विड टू गैस की बात करते हैं. तो लिक्विड टू गैस में क्या होता है? जब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है तो लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े नजदीक होते हैं, बट जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ वाटर या फिर लिक्विड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग इवन फास्टर. पहले तो वो मूव कर रहे थे, लेकिन अब उनका मूवमेंट और फास्ट हो जाता है. Some of the particle become so energetic that they can overcome the attractive forces of the particles around them. मतलब particles की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है हीट सप्लाई करने से, और वो इतना फास्ट मूव करते हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them and the other liquid particles को ओवरकम कर लेते हैं. When they overcome this intermolecular force of attraction, they become free to move, and they escape in the form of गैस फ्रॉम लिक्विड. फिर वो गैस बन के लिक्विड के सरफेस को एस्केप करते हैं. तुम लिक्विड को बॉईल होते हुए देखो, तुम्हें उसकी सरफेस पे क्या दिखता है? वो वेपर निकलते हुए दिखता है ना. यही है, इसकी वजह से. When this happens, the liquid evaporates. जब ये होता है तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है. That is, it starts changing into gas. लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. तो अब समझ में आया लिक्विड गैस कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए क्या जरूरी है? लिक्विड टू गैस कन्वर्जन के लिए हीट जरूरी है. तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी. दीज पार्टिकल्स दे बिकम सो एनर्जेटिक दैट दे कैन ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड देम. देयरफॉर दे बिकम फ्री टू मूव एंड एस्केप फ्रॉम लिक्विड. सो जब ये होता है तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है. दैट इज, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस. नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड. तो एक डेफिनेशन आ चुकी है बॉइलिंग पॉइंट की. क्या है डेफिनेशन? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस और वेपर at atmospheric pressure is called its boiling point. उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है ये, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ये एग्जिस्ट करता है. अब बॉइलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं. बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना. पहला ही स्टेटमेंट देखो, बॉइलिंग क्या है?
बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब क्या? बल्क मतलब इन अ ग्रेट लार्जर ह्यूज क्वांटिटी, बल्क मतलब ह्यूज क्वांटिटी। तो बॉइलिंग बल्क क्वांटिटी, बल्क फिनोमेना क्यों बोला है बॉइलिंग को? क्योंकि बॉइलिंग कब होता है पता है? जब पूरा वाटर बॉईल होता है उसी को बॉइलिंग बोलते हैं। जब सपोज एक इवेपोरेशन, अब जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि एक मैंने कंटेनर रखा है और वो कंटेनर में लिक्विड है, और वो कंटेनर को मैं धूप में रखता हूँ लिक्विड वाले, तो क्या होगा पता है? आफ्टर सम आवर्स आई विल सी के वो लिक्विड का जो लेवल है वो नीचे आ गया। तो ये ऊपर वाला लिक्विड कहाँ गया? वो स्टीम बन गया, वो स्टीम बन गया, वेपर बन गया, गैस बन गया। तो ये तो बॉइलिंग हुआ भी नहीं, वैसे ही गैस बन गया। हाँ, क्योंकि ये बल्क फिनोमेना नहीं थी, ये इवेपरेशन की फिनोमेना थी, ये बॉइलिंग नहीं था। क्यों बॉइलिंग नहीं था? क्योंकि इवेपरेशन और बॉइलिंग ये दोनों एक ही चीज करते हैं, ये लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन बॉइलिंग में पूरा लिक्विड एक साथ बॉइल होता है, इवेपरेशन में सिर्फ ऊपर वाला जो लेयर है ना लिक्विड का वही इवेपरेट होता है। तो बॉइलिंग इसलिए बल्क फिनोमेना है और इवेपरेशन सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं तुम्हारे रेफरेंस के लिए। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमेना, फिनोमेना। एंड इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन, इट इज अ बॉइलिंग बल्क फिनोमेना है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। Boiling is a bulk phenomena and evaporation is a surface phenomena. ठीक है? In this process, the particles from the bulk of the liquid get enough energy to change into vapor state. For water, the boiling point is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. The particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. Right? तो जब वाटर बॉईल होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसके पास, उसके पार्टिकल्स के पास बहुत सारी एनर्जी होती है। और स्टीम के पास ये एनर्जी आती कहां से? स्टीम के पास ये एनर्जी आती है हीट एब्जॉर्ब करके। राइट? जब वो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर से स्टीम बनता है तब उसके पास वो एनर्जी भी होती है। यहां पे लिखा है, बहुत ही क्लियरली लिखा है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी in the form of latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization क्या है? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of water into 1 kg of vapor at atmospheric pressure without any change in temperature at its boiling point. मतलब मेरे पास अगर 1 kg water है at 100 डिग्री सेल्सियस और वो कन्वर्ट हो जाता है 1 kg स्टीम में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि स्टीम के पास जो एनर्जी होगी इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, मतलब हिडन हीट, छुपा हुआ हीट। वो छुपा हुआ हीट कहां से आया? तो जब हमने वाटर को बॉईल किया तो वो बॉईल होते होते उसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा था जब पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो गया, बट वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा था वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को वाटर के ब्रेक कर रहा था, और वो स्टीम के पार्टिकल्स में जाके वो हीट स्टोर हो गया। इसलिए स्टीम के पास ज्यादा हीट है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा दोनों फर्क, दैट इज latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Latent heat of fusion जो हमने बताया यहाँ पे, that is amount of heat energy required to change from 1 kg of solid into 1 kg of liquid, and latent heat of vaporization, that is amount of heat energy required to change 1 kg of water into 1 kg of vapor. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस और वेपर में फर्क क्या है? बार बार हम लोग ये वर्ड पढ़ते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन उनमें फर्क है। गैस और वेपर में क्या फर्क है, इसको नोट कर लेना। The terms gas or vapor are the same. Word vapor is used to describe those gases which usually exist as liquid at room temperature. मतलब जो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और वो जब गैस बनता है
तो वो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम वेपर बोलते हैं। जैसे वाटर का वेपर होता है, वाटर का गैस नहीं होता। वाटर लिक्विड पे, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, जब वाटर बॉईल होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम लोग वाटर गैस नहीं बोलते, वाटर वेपर बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस ही होता है, इसलिए हम उसको वेपर नहीं बोलते हैं, उसको गैस ही बोलते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइक मेल्टिंग, द टेम्परेचर ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड रिमेन्स constant once the liquid starts boiling, even though it is still being heated. This is because heat supplied is used to change the state of liquid water to water vapor by breaking the force of attraction. As a result, there is no change in temperature till the water evaporates. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? The heat energy required to change the state of a substance is called latent heat. तो जो एनर्जी एक सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है उसको लेटेंट हीट बोलता है, और वो हिडन होता है, वो थर्मोमीटर पे नहीं दिखता, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेक प्लेस करता है। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सॉलिड टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर at melting point. Latent heat of vaporization क्या है? The energy absorbed by liquid to get converted into vapor at room temperature. Latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 raised to 5 joules per kg, and latent heat of vaporization of water is 2.25 into 10 raised to 6 joule per kg. चलो इसका हम लोग थोड़ा सा डाइसेक्शन करते हैं, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मैं यहां पे लिखता हूं। दिस मीन्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन of ice is 3.34 into 10 raised to 5 joules per kg, means that 1 kg of ice requires 1 kg of ice at 0 degree Celsius requires 3.34 into 10 raised to 5 joules of heat। तुम सोचोगे ये जूल क्या है? जूल इज एसआई यूनिट ऑफ हीट। हीट को मेजर करने के लिए जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 1 kg of ice requires this much heat. 1 kg of ice at 0 degree Celsius requires this much heat to convert into 1 kg of water at 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर नोट करना 0 डिग्री है, लेकिन हीट अब्सॉर्ब करता है वो, क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टेट चेंज करना है। चलो इसको भी हम लोग यहां पे डिफाइन करते हैं। सो 1 kg ऑफ वाटर at 100 degree Celsius requires 2.25 into 10 raised to 6 joules of heat to convert into 1 kg of steam, या फिर वेपर, स्टीम लिखता हूं मैं, ठीक है, at 100 डिग्री सेल्सियस। देखो दोनों का टेम्परेचर 100 है, स्टीम का और वाटर का, लेकिन स्टीम ने हीट एब्जॉर्ब करके वाटर बना है। तो मुझे बताओ स्टीम ज्यादा गर्म है या वाटर ज्यादा गर्म है? अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, उसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर गिरता है उसके हाथ पे, और दूसरे केस में किसी के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम उसके हाथ के साथ कांटेक्ट में आता है, किसको ज्यादा सीवियर बर्न होगा? सोचो और बताओ। हु विल बी सीवियरली बर्न्ड between among these two persons? One person comes into contact with 100 degrees Celsius of boiling water, other person comes into contact with 100 degrees Celsius of steam, and the answer is 100 degrees Celsius of steam will cause more burning, more damage. Why? Because 100 degrees Celsius of steam has got 2.25 into 10 raised to 6 joule of heat more
देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। स्टीम्स के बर्न ज्यादा सीवियर होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम्हारा हाथ स्टीम के साथ कांटेक्ट में आता है, इट विल बी वेरी वेरी सीवियर। ठीक है, वैसे ही और एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछता हूं ये आइस के बारे में। अगर आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर तुम्हारे घर पे गेस्ट आते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है? हाँ, अगर तुम्हारे घर पे गेस्ट आते हैं, ठीक है, तुम्हारी मम्मी बोलती है कि बेटा गेस्ट आए हैं, ये गेस्ट को हम लोग पिलाएंगे कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, गेस्ट को क्या पिलाना है? कोल्ड ड्रिंक। तो तुम ग्लास में कोल्ड ड्रिंक निकालते हो, या जो भी तुम बनाते हो, कुछ घर पे शरबत या जो भी वो बनाते हो तुम। ठीक है, तो मम्मी बोलती है बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, इसको ठंडा देना, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक देना गेस्ट को। तो तुम बोलते हो ठीक है मम्मा, मैं ठंडा दूंगा, दूंगा जो भी है। ठीक है, सो तुम बोलते हो अरे हमने तो फिजिक्स पढ़ा है, आइस तो नहीं है फ्रिज में, लेकिन वाटर है, और वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूँ। तो तुम पेप्सी से भरते हो आधा ग्लास और थोड़ा उसमें पानी डाल देते हो 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मम्मी बोलती है बनाया बेटा, कोल्ड ड्रिंक रेडी है, आइस डाला, ठंडा किया। तो बोलते हो हाँ। तो मम्मी बोलती है आइस किधर है? तो तुम बोलते हो मम्मी मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो मम्मी फिर क्या करती है पता है? चप्पल निकाल के तुम्हारी पिटाई करती है। बदमाश, बदमाश तो नहीं बोलेगी, लेकिन क्या बोलेगी? डफर, बेवकूफ, ये तेरे को समझ में नहीं आता? गेस्ट को ऐसे पानी वाला कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे क्या? आइस वाला कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए। तुम बोलोगे मम्मी फर्क क्या है, दोनों तो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फिर मम्मी बोलेगी कौन है तुम्हारा फिजिक्स टीचर, ठीक से पढ़ाया नहीं लगता है। तो याद रखो ये केस नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये चीज याद रखो। अगर तुम्हारे घर पे गेस्ट आते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक देना है तुम्हें ठंडा, तो वाटर मत ऐड कर देना, प्लीज वाटर मत ऐड करना। क्योंकि आइस जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो वाटर के पास 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट ज्यादा होती है। भले वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन वाटर के पास ज्यादा हीट है। तो दोनों में से ठंडा कौन है, कूलर कौन है? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम आइस ऐड करते हैं ठंडा करने के लिए, वाटर से ठंडा नहीं होता है। तो कभी भी किसी के कोल्ड ड्रिंक में ठंडा पानी मिक्स करके उसको ठंडा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो चप्पल पड़ेगी तुमको घर से सबसे पहले। और फिर फिजिक्स की एग्जाम में जाओगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, वो अलग, फिजिक्स या केमिस्ट्री है जो जो भी है। समझ में आया तुम्हें? तो विच इज मोर कूलर, आइस एट 0 डिग्री और वाटर एट 0 डिग्री? आइस एट 0 डिग्री। विच इज मोर हॉटर, वाटर एट 100 डिग्री और स्टीम एट 100 डिग्री? स्टीम एट 100 डिग्री इज मोर हॉटर। अभी तुम्हें समझ में आया? काफी अच्छे एग्जाम्पल से मैंने समझाया। चलो, तो ये क्या है? तो ये इंटरमोलिकुलर इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर दिखा है यहाँ। स्टीम को अगर कूल करोगे, अच्छा ये उल्टा दिखा रहे, उल्टा स्टेट। स्टीम को कूल करने से, 100 डिग्री से नीचे लाने से कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। तो जैसे वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना बॉइलिंग है, स्टीम का वाटर में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन है। फिर वाटर को तुम अगर 0 डिग्री से बिलो कूल करोगे तो सॉलिडिफिकेशन होता है। मतलब आइस का वाटर में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, तो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन है। ठीक है, मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर पॉसिबल है, होता है, हो सकता है, हो रहा है हमारे अराउंड। और उसके पीछे का साइंस क्या है वो हमने आज पढ़ा। ठीक है, सो क्या है एक्टिविटी? अच्छा, कुछ चीजें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकती है, ये है नेक्स्ट टॉपिक। सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ये इंटर कन्वर्जन भी पॉसिबल है, और इसको हम लोग एक स्पेशल नाम बोलते हैं सब्लिमेशन। गंदे हैंड राइटिंग, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब व्हेन
substance directly get converted into solid to gas and gas to solid. तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है। अब तुम देख रहे हो बहुत सारा, वो कोरोना के टाइम पे अभी तो काफी आया है, कैम्फर। कैम्फर जलाने से कोरोना नहीं होता। ये कैम्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कैम्फर की बात की है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है पता है? एक चाइना डिश में, चाइना डिश एक डिश होती है जिसको तुम डायरेक्टली बर्नर के ऊपर गॉज रख के हीट कर सकते हो। कैम्फर रखा है थोड़ा, और वो कैम्फर हीट होता है ना, सीधा वेपर में कन्वर्ट होता है। और वो वेपर, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल अगर रखेंगे तो इन्वर्टेड फनल के जो बाउंड्रीज है, जो ग्लास है उसका ऊपर का सरफेस है, ऊपर कॉटन प्लग डाल देना है ताकि कैम्फर के वेपर बाहर ना जाए। तो वो इन्वर्टेड फनल के सरफेस के ऊपर ये कैम्फर पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन बोलते हैं उसको। तो कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ऐसे दूसरे सब्सटेंस भी है, सिर्फ कैम्फर नहीं है। एक दूसरा सब्सटेंस है, वो है नैप्थलिन। नैप्थलिन बॉल्स, देखे नैप्थलिन बॉल्स? तो तुम्हारे बाथरूम में या कबर्ड में मम्मी रखती होगी। वाइट कलर के छोटी गोलियां होती है, बॉल्स होते हैं, और वो धीरे 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 छोटे हो जाते हैं। ये क्यों रखते हैं? बिकॉज इंसेक्ट्स ना आए। इनकी स्मेल से कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स नहीं आते, इसलिए कबर्ड में और बाथरूम में रखा जाता है नेफ्थलीन बॉल्स को। ठीक है। और एक दूसरा सब्सटेंस है जो सब्लिमेबल है, वो है अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड केमिकल का नाम है। ये भी ऐसा व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हीट करने से डायरेक्टली, वो सॉलिड होता है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और कूल करने से वापस गैस से सॉलिड हो जाता है, लिक्विड होता ही नहीं है। ठीक है, सब्लिमेशन। अच्छा, ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? तो याद रखना कि जब भी किसी भी मैटर पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसके पार्टिकल और पास में आ जाते हैं, और पार्टिकल पास में आने से उसका स्टेट चेंज हो सकता है। सो गैस के पार्टिकल्स के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसका ही डेफिनेशन दिया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन। ये वर्ड याद रखना, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है? गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, उसको लिक्विफैक्शन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। जो तुम्हारे घर पे सिलेंडर है ना, वो लिक्विड है, बट वो एक्चुअली गैस है जिसको कंप्रेस करके रखा गया लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही तुम रेगुलेटर को ऑन करते हो और गैस, उसमें से जब प्रेशर कम होता है तो बाहर गैस निकलता है, और वो गैस को तुम बर्न करके खाना पकाते हो। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? गैस पे प्रेशर इंक्रीज करने से वो लिक्विफाइड हो जाता है। ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन जानता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, वो तुम्हें पता है? वो स्टेज शोज होते हैं, कुछ म्यूजिक शोज होते हैं या फिर थिएटर्स, उसमें कभी कभी ऐसा स्पेशल इफेक्ट करने के लिए स्टेज पे ऐसा व्हाइट कलर का स्मोक दिखता है। वो जो व्हाइट कलर का स्मोक है ना, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। वो ऐसा थिक कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस ही दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, इसलिए वो थिक व्हाइट फ्यूम जैसा दिखता है। ठीक है। तो दैट इज, by applying pressure on carbon dioxide we can convert it into that solid carbon dioxide, ड्राई आइस भी बोलते हैं उसको। वापस वो लोग ने एक्सप्लेन किया है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है। और सब ट्राइंगल है ये, बेसिकली बहुत सिंपल ट्राइंगल है, इसके ऊपर हम लोग ने बहुत बातें की। चलो इवेपोरेशन पे आते हैं। तो इवेपोरेशन क्या है? सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस in which a liquid directly changes into a gas. A liquid directly changes into a gas uh, without heating it या without boiling it. मतलब लिक्विड सीधा सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बॉइलिंग की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ही होता रहता है। उसी को इवेपोरेशन बोलते हैं। तो इवेपोरेशन के एग्जाम्पल क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक इवेपोरेशन। सी वाटर, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, ये सारे वाटर के सोर्सेस में जब समर में या फिर कोई भी सीजन में जब हीट होती है
तो हीट की वजह से, सनलाइट की वजह से ये वाटर इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। वाटर वेपर से हमने क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स बन के फिर से वापस वो कंडेंस होके रेन आता है। तो ये वाटर साइकिल है, तुम जानते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इवेपोरेशन का, और ये रूम टेम्परेचर पे होता है, इसको कोई सी वाटर को बॉईल नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है कपड़े सुखाने, तुम देते हो, गीले कपड़े सूखते कैसे हैं? गीले कपड़े का पानी कैसे सूख जाता है? क्योंकि इवेपोरेशन होता है। तो तुमने देखा होगा कि रेनी सीजन में इवेपोरेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ा है कि हमने देखा है कि जब हम लोग मॉपिंग करते हैं, फ्लोर को मॉप करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो फ्लोर गीला होता है, उसको सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? फैन चालू कर देते हैं, हवा से इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। राइट, ये सब इवेपोरेशन हमारे अराउंड हो रहा है, रोज हम देखते हैं। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। द फिनोमिना of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो evaporation रूम टेम्परेचर पे होता है या एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। मतलब evaporation में बॉइलिंग नहीं होता, फिर भी वाटर या लिक्विड अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैक्टर्स क्या है evaporation को इफेक्ट करने वाले? यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, एक्टिविटी पे नहीं जाता हूं मैं, डायरेक्टली फैक्टर्स पे आता हूं और बात करके ही तुम्हें समझाऊंगा। पहले तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज्यादा, उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब स्पीड ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। सिंपल मैं बताऊं, कपड़े सुखाते हो तो कपड़े को ऐसा फैला के रखते हो, स्प्रेड करके रखते हो, या फिर ऐसे ही डाल देते हो? नहीं, तुम उसको तुम्हारा जो कपड़े सुखाने का रस्सी है, उस पर तुम उसको फैला के रखते हो, फैला के सुखाते हो। क्यों? क्योंकि जितना स्प्रेड रहेगा सरफेस एरिया, उतना ज्यादा रहेगा वेट क्लोथ का, और उतना इवेपोरेशन ज्यादा हो। और एक एग्जांपल देख लो कि तुम अपनी खिड़की में एक ग्लास पानी रखो, और दूसरा एक सॉसर ले लो, और वो सॉसर में या फिर ओपन डिश में पानी रखो, और देखो कि 3 घंटे बाद क्या होता है। 3 घंटे बाद वो जो डिश है उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ग्लास का पानी इवेपोरेट नहीं होगा। ग्लास में सरफेस एरिया कम था और वो डिश में सरफेस एरिया ज्यादा था, तो सरफेस एरिया ज्यादा, तो इवेपोरेशन का रेट भी ज्यादा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवेपोरेशन। मेरे को बताओ, विंटर में कपड़े जल्दी सूखेंगे या समर में? ऑफकोर्स समर में, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो इजीली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी देखो, ह्यूमिडिटी जितनी कम, इवेपोरेशन उतना ज्यादा। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर अराउंड यू, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है? रेन में, रेनी सीजन में, मानसून में ज्यादा होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से जो वाटर वेपर्स है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है तुम्हारे कपड़ों में या कोई भी सरफेस पे, वो जल्दी से एटमॉस्फेयर में मिक्स नहीं होना चाहते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो एयर ज्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर पाता एट अ गिवन टेम्परेचर, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट कम हो जाता है। कपड़े सूखते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। विंड स्पीड जितनी ज्यादा, उतना इवेपोरेशन ज्यादा। इसलिए हम लोग फैन ऑन करते हैं ना, फ्लोर को सुखाने के लिए, ताकि विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगी, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। इसीलिए क्लोथ्स विंडी डे पे भी जल्दी सूखते हैं, और हमारा फ्लोर फैन ऑन करने से, फैन फास्ट करने से जल्दी सूखता है। कुछ चीजें हमें ठंडी भी करनी होती है, गर्म चीज है, तो हम लोग उसको फैन के नीचे रखते हैं, ताकि उसमें से जल्दी से वेपर सारे निकल जाए और अपने साथ वो सारी हीट ले जाए और वो चीज ठंडी हो जाए। इसलिए हम लोग वो सॉसर में, कुछ लोग तुमने देखा होगा, चाय को निकाल के ठंडी करने के लिए सॉसर में निकाल के फूंक मार के पीते हैं, और आवाज करके ऐसे, आवाज करने का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? जस्ट आई एम जस्ट किडिंग विथ यू। ओके, सो इवेपोरेशन सरफेस एरिया के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर के साथ भी इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के साथ डिक्रीज होता है इवेपोरेशन,
और विंड स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। जैसे तुम्हें पता है वो नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, उसको हाथ में लो तो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है और ठंडा भी लगता है। तो जब भी इवेपोरेशन होता है ना, वो जिस बॉडी के साथ वो लिक्विड कांटेक्ट में, उसको वो ठंडा करके जाता है, क्योंकि इवेपोरेट होने के लिए वो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसलिए वो बॉडी को ठंडा करता है। तो तुम्हारे हाथ में वो नेल पॉलिश रिमूवर लेके देखो और उसको फैन के नीचे रखो, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा और हाथ में ठंडा ठंडा लगेगा। यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इवेपोरेशन होगा, द पार्टिकल्स विच इवेपोरेट दे विल एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट टू गेट इवेपोरेटेड फ्रॉम whom, फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम विच दे आर इवेपोरेटिंग। अगर लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो लिक्विड जिस सब्सटेंस से इवेपोरेट होता है उससे वो हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा। इसलिए क्या होगा कि लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स जब इवेपोरेट होंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, पहले ही नेल पॉलिश रिमूवर वाला मैंने बताया, वही एग्जांपल है। अच्छा, सनी हॉट डे में तुम्हें पता होगा गांव में जब धूप होती है तो ऑन अ सनी हॉट डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ एंड इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। जो आंगन होता है, रूफ होता है, उसमें पानी छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पानी जब हॉट सनी डे पे छिड़का जाता है, उससे क्या होता है कि व्हेन द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इट कॉजेज कूलिंग, ठंडी हवा आती है उससे। ठीक है, तो हॉट सरफेस को कूल करने में ये हेल्प करता है। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मटका, अर्दन पॉट या मटका क्यों यूज करते हैं समर में? क्योंकि अर्दन पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स में से वाटर कंटिन्यूसली ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आता रहता है, और वो वाटर समर में इवेपोरेट होता है, और वो वाटर जब इवेपोरेट होता है तो मटके के अंदर का पानी को और ठंडा कर लेता है, क्योंकि टू इवेपोरेट इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द मटका, inside the earthen pot. So it absorbs the heat from it. The water inside the matka becomes more cooler and the water outside gets evaporated. So this is how matka works. Matka is scientific, man. Okay. हमें कॉटन के क्लोथ क्यों पहनने चाहिए समर में? क्योंकि कॉटन के क्लोथ में छोटे छोटे होल्स होते हैं। समर में हम ज़्यादा परस्पायर मतलब स्वेट करते हैं, तो वो स्वेट कॉटन के क्लोथ के थ्रू, कॉटन का क्लोथ गीला हो जाता है, तुरंत उसमें से इवेपोरेट हो जाता है ये स्वेट, और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। तो कॉटन के कपड़े पहनने से हमें कूल फील होता है, अच्छा फील होता है। इसलिए समर में नायलॉन के क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनना चाहिए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? देखा होगा तुमने, ठंडे पानी वाले ग्लास को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें बाहर ऐसे वाटर के ड्रॉप्स बन जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं वाटर के ड्रॉप्स? ये एक्चुअली ठंडे पानी का ग्लास का जो बाहर का टेम्परेचर है वो भी कूल होता है। तो एटमॉस्फेयर में जितने भी वेपर्स है वो कोल्ड सरफेस के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं, उनको कोल्ड सरफेस मिलता है, उसके साथ कांटेक्ट में आते ही वो कंडेंस हो जाते हैं। इसलिए ये एक प्रूफ भी है कि हमारे अराउंड बहुत सारे वाटर वेपर है, हमने दिखते नहीं है हमको, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में, बट जैसे ही उसको कूल सरफेस मिलती है वो उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। इसलिए ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिखते हैं हमें आइस कोल्ड वाटर के ग्लास पे। अच्छा, और भी स्टेट्स है मैटर के। एक प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा स्टेट सुपर एनर्जेटिक एक्साइटेड पार्टिकल्स का स्टेट है। इसके बारे में ना तुम यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, जबकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जो तुम्हारे नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं ना, नियॉन साइंस, जो बड़े बड़े स्टोर्स मॉल्स में तुम्हें नियॉन साइंस दिखती है, उसमें प्लाज्मा होता है। वो जो नियॉन गैस होता है वो प्लाज्मा स्टेट में होता है। ठीक है, वो ग्लो करता है, प्लाज्मा स्टेट एक स्पेशल कलर के साथ ग्लो करता है। और 1920 में एक इंडियन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बताया था। तो 3 स्टेट तो हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, चौथा स्टेट प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। और ये कैसे बनता है? एक गैस को बहुत ज्यादा कूल करेंगे लो डेंसिटी पे, तब जाके ये स्टेट बनता है।
और इनको बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए कुछ साइंटिस्ट को 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था फॉर दैट स्पेशल स्टेट। ठीक है, सो दैट वाज योर चैप्टर। तो कुछ सॉल्ड एग्जांपल भी है, चलो कर लेते हैं। विच फिनोमेना अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग चेंजेस? ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स क्या है ये? बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग होता है? नहीं होता बॉइलिंग, इवेपोरेशन। डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ नैप्थलीन बॉल्स, सब्लिमेशन। तुम खुद ही आंसर दे रहे होगे है ना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज कंडेंसेशन। अच्छा, कंडेंसेशन तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, रेन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। रिमेंबर, प्रेसिपिटेशन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सब्लिमेशन। क्यों सब्लिमेशन? गैस टू सॉलिड मतलब डायरेक्ट सब्लिमेशन ना, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया गैस इनटू लिक्विड अमोनिया, लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना लिक्विफैक्शन होता है, याद रखना। करेक्ट। In the following example, state which of the factor is responsible for the change in rate of evaporation and is effective. Wet clothes dry faster on spreading them, increasing surface area. Surface area increase किया, इसकी वजह से ही तो ये फास्ट ड्राई हो रहा है। Clothes dry faster on a windy day. Wind speed, विंड स्पीड ज्यादा मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ रेनी डे। ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस the rate of evaporation. Clothes dry faster in sun rather than in shade. Increase in temperature. Increase in temperature rates increases the rate of evaporation. Correct? Which of the following statements are true or false? Correct the false statement. When we pour some nail polish remover on our palm, we feel warm. False. False. We feel cold. Why we feel cold? Because when the nail polish remover evaporates from our hand, it takes away some heat from our hand and then it evaporates. That's why we feel cold. Evaporation increases by increase in humidity. False. Evaporation decreases by increase in humidity because air cannot hold more quantity of water vapor at a certain temperature. That's why if the humidity is higher, the rate of evaporation will be lesser. Boiling point of a liquid is always constant irrespective of atmospheric pressure. No, false. Boiling point is constant at a constant atmospheric pressure. If the atmospheric pressure changes, boiling point also changes. इसका एक एग्जांपल दूं तुम्हें, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे नॉर्मल सी लेवल पे यहाँ पे मुंबई में वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। तुम जाओ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, माउंटेन पे चले जाओ, हिमाचल प्रदेश के हाई माउंटेन पे, तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा पता है तुमको? वाटर जल्दी बॉईल हो जाता है। ठीक है, वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है इट इज लेस देन 1 atm। प्रेशर इज लेस देन 1 atm, प्रेशर वहां पे कम हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट कब रहेगा? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, हाँ सही है, ट्रू है, ये तो ट्रू है। फॉल्स 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 ट्रू। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज अबव रूम टेम्परेचर under atmospheric pressure, it is classified as liquid. True, correct है, ये भी सही है। अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है मतलब वो गैस ही होगा। हाँ सही तो है। सो फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, करेक्ट है। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। ये वाला होमवर्क देखो 30 क्वेश्चंस है, और भी बहुत सारा होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें आज,
बहुत बढ़िया होमवर्क तुम्हें आज मिलने वाला है, ठीक है। सो चैप्टर खत्म हो गया अपना। सोचो 2 क्लास में 2 वीडियो में चैप्टर खत्म हो गया। तो टॉपिक पे डिपेंड करता है, जैसे फिजिक्स में हमको 6 वीडियोस लगे, 7 वीडियोस लगे एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, उसमें ज्यादा लॉजिक है यार, इसमें ज्यादा नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए चैप्टर जल्दी खत्म हो गया, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। होमवर्क खत्म करो, कुछ भी डाउट्स है मेरे से डिस्कस करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।